Hello students, this is Jyotsna and we are at the Maths Infinity channel and today we are going to do statistics. Statistics is one of the most important chapter in your class and also it's a very important, it's a very easy chapter in your class. Why I'm saying important, it's going to, you have to learn in the 11th class and as well as in the 12th class. But the chapter is really easy because you just have to cram some formula and do some questions. So let's start it here. I'm Jyotsna and I am going to take you to the right of the statistics. Here we go. This is Jyotsna Sharda and I have done double masters. A lot of students I have taught. During my teaching experience, I had a lot of teaching experience, just, same as your age. Just 15 years. If you are the 15 years, so my teaching experience is also of the 15 years. So let's start with the statistics. Here we go. This is a sprint. Now, सबसे पहले sprint होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये doubt रहता है, मैम, what is the sprint? Sprint is a thing that I'm going to make you explain. Me and Dean Bandhu sir is going to explain all the chapters of your 10th class because 10th class your exams is coming, so we are just going to revise your chapter and the most important questions in every session. Whatever I have taken, circles, AP, arithmetic progression, I have taken all very important eight very important questions which are going to come in your exams. But today I am going to take only 6 questions because stats mein you don't have a lot of things, you just have a mean, median, mod, that's it. सो आई हैव टेकन ऑल दिस थिंग्स, मीन, मीडियन, मॉड. तो 8 क्वेश्चंस में से बन नहीं पाया और मुझे लगा कि बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज से अभी इसी वक्त स्टैटिस्टिक्स. हियर वी गो. चलो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सच में पसंद आए ज्योत्सना मैम, तो लाइक करना ना भूलिएगा. हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में मीन है, मीडियन है, मॉड है एंड ऑल्सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है. बट फिलहाल ये आपके सिलेबस से कट गया है. So I'm not going to teach this thing. ये पहली 3 चीजें mean, median, mode I'm going to revise. So let's go. Here we go. This is the first question in front of you. Very easy question. But इस question की खासियत है. Why I have picked this question? इस question में बच्चों को ये समझ नहीं आता what exactly we need to find it out. Mean, median या mod. तो जो भी question आए, definitely you need to find only this one of the 3 things. कौन सा निकालना ये पकड़ना है. Given below we have a distribution and from this distribution we need to calculate something. Okay, calculate करना है हमको the pocket money that is received by most of the students. What does it mean? अगर ये mean पूछते they will ask average. अगर ये median पूछते तो definitely जो इसका question का जो vocabulary है या फिर जो question के अंदर जो इसका लिखा हुआ है most की जगह पे होता mid. रिसीव्ड बाय जो भी आपकी यहाँ पे क्या है, पॉकेट मनी है. पॉकेट मनी का मीडियन क्या है? अभी आपको क्या पूछा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स. तो मेजॉरिटी में हम क्या निकालते हैं? मॉड. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड. ओके, अब कैसे करेंगे पहले वो सोचते हैं. आपको कुछ पॉकेट मनी दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, आपको पता चल गया मॉड निकालना है, तो फटाफट से फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं और मॉड निकालते हैं. डियर वंस, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मॉड इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वन. एग्जाम में अगर कभी भी आपको इसके बीच में इंटरनल चॉइस आता है, ऑलवेज चूज मॉड बिकॉज मॉड इज इजी, वेरी इजी. चलिए, तो इसमें क्या करते हैं हम? कुछ याद है? चलिए हम छोटू हो जाते हैं, आपको फॉर्मूला बताते हैं क्या है. तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इज इक्वल्स टू L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि मॉड के लिए F1 F0 या F0 क्या है. तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18. तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास. वी कॉल्ड दिस एज अ मीडियन क्लास. ये तो बच्चा है मीडियन क्लास. एंड दिस वन इज F1. इससे छोटा वाला क्या होगा? F0. इससे आगे क्या होगा? F2. H कितना है? अब H को देखते हैं. H क्या है? H इज द विड्थ. क्लास विड्थ कह सकते हैं, क्लास साइज कह सकते हैं. ये जो आपके सामने क्लास है 80 to 100, इसका क्लास साइज क्या है? 100 minus 80. सो दिस गिव्स यू H एज अ 20. H 20 आ गया. L क्या होता है? लोअर लिमिट. ये जो लिमिट, ये जो क्लास इंटरवल आपके पास आया है 80 to 100, you need to find out इसका lower limit कौन सा है? that is 80. तो here let's just substitute values. 80 plus F1 minus F0, 18 minus 12 divided by 18 into 2, that is equal to 36 minus 12 minus 5 into 20. I think मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, that you can do it by yourself. थोड़ा बहुत सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए.
सो इसको कैलकुलेट कहाँ करें? ओके, लेट्स कैलकुलेट इट समवेयर हियर. इधर कैलकुलेट कर देती हूँ. 80 plus 18 minus 12 that is 6. 6 divided by 13 minus this is 17. तो भैया ये कितना आ जाएगा आपके पास? 9 and 17 it gives you 1 and 20. Just calculate this thing, you will get an answer. Answer definitely 80 plus आएगा. याद रखिएगा, कभी भी आपके मन में डाउट आए कि आपने सही निकाला है कि गलत, ऑलवेज चेक जो भी आपने वैल्यू निकाली है क्या वो मॉडल क्लास के बीच में है, यानी कि वट एवर इज आंसर इज इट मस्ट बी ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100 बिकॉज इट शुड लाई बिटवीन 100 एंड 80 क्योंकि वही हमारा मॉडल क्लास निकला था. सो आंसर इज 86.32. सो दैट्स एन आंसर. इजी पीजी. ठीक है, तो यही निकला है. कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर, हमारे पास आ जाएगा 86.32. आई थिंक नाउ दिस इज इट्स इजी पीजी. मॉड सबसे आसान होता है यार, ऑलवेज ऑप्ट फॉर द मॉड. आगे चलते हैं. नाउ फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. अरे बाबा, दोनों चीजें निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीन की, मीन के लिए हमें बहुत एक खास चीज निकालनी पड़ती है जो कि हमें मीडियन और मॉड के लिए नहीं निकालनी पड़ती. दैट इज देयर मिड वैल्यू. ठीक है, मिड वैल्यू कहते हैं या फिर उसको हम कहते हैं क्लास मार्क. ठीक है, वो क्या होता है? इसका मिड होता है 0 से 4 का मिड कितना है? 2. इसको हम xi से डिनोट करते हैं. इट विल बी 2. मिड कैसे निकालते हैं? अगर 0 से 4 के बीच का निकालना है ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. जैसे 4 से 8 के बीच का निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6. या फिर एक और तरीका बताती हूँ आपको, इनके बीच में कितना डिफरेंस कितना आ रहा है? 4. बस 4 4 ऐड करते जाओ, खत्म बात. बार बार थोड़ी ना हम उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे. नो, वी आर जस्ट डूइंग दिस, एडिंग 4 एवरी टाइम. यू विल गेट xi. xi आ गया आपके सामने. अब मैं बात करती हूँ मीडियन की. मीडियन के लिए ऐसी कौन सी चीज है, मतलब इसके लिए क्लास मार्क निकालना पड़ता है और इसके लिए CF. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि मीन और मॉड में नहीं निकालना पड़ता. CF भी निकाल लेते, इधर थोड़ी सी जगह है हमारे पास. तो CF निकाला भैया, ये आ गया 3. 3 plus 5 it's 8. 8 plus 9 it's 17. 17 plus 5 it will give you 22. 20 plus 3 gives you 25. तो हमारे पास मीडियन आ गया, मतलब जिसको टोटल होगा दैट विल बी 25. यहाँ तक हम पहुंच गए. अब हम बात करते हैं मीन की. तो पहले मीन निकालते हैं, फिर उसके बाद मीडियन निकालेंगे. लेट मी चेक. आई हैव सम मेरे पास थोड़ा सा जगह भी है तो मैं इसको कर सकती हूँ. सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी? xi इंटू fi. अगर मुझे निकालना है मीन तो मैं निकालूंगी xi fi मल्टीप्लाई करूंगी. और अगर मुझे निकालना है मीडियन तो मैं इस वक्त मीडियन क्लास निकालूंगी. तो क्या निकालें इसमें? इस वक्त मेरा मूड है कि मैं मीडियन निकालूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने CF निकाल ही लिया है तो यार मीडियन निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि उसके लिए आपको और कुछ कैलकुलेट करने की टेबल में तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है. सो मीडियन कैसे निकालते हैं? जो लास्ट आया 25. 25 को 2 से डिवाइड करो, आपके पास कितना आ जाएगा? दैट विल गिव यू 12.5. 12.5 को क्या करते हैं? जो भी आपके पास CF आया ना उसमें देखो 12.5 से बड़ा कौन सा है? 17. बस खत्म हुई बात यार. यही है हमारा मीडियन क्लास. 8 12, ये फ्रीक्वेंसी 9, ये है हमारा मीडियन क्लास. तो अगर मैं मीडियन क्लास की बात करूं दैट इज 8 to 12. इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई? 9. दिस इज नॉट 8, दिस इज F फ्रीक्वेंसी. CF कितना आया? CF एक प्रोसीडिंग होता है ऊपर वाला, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 8. F आ गया, CF आ गया, मीडियन क्लास आ गई. लोअर लिमिट कितनी आई है? 8. अब बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो. इफ यू नो द फॉर्मूला इज L प्लस, बच्चों फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आप, तभी तो मैं कहती हूँ स्टैट सबसे आसान है. L कितना है? 8. 8 प्लस n/2 यानी कि 12.5. चलो पूरा लिख देते हैं. माइनस CF इज इन 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू H. H हमारे पास कितना आ गया? H कितना होता है? हमेशा क्लास विड्थ होती है, दैट इज गिवन बाय 4. अब यार कैलकुलेट आप खुद से कर लें. अगर हम कैलकुलेशन करने बैठे तो बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर, बट ऐसी बात नहीं है. मैं आपको PDF दूंगी और आपको इस क्लास में भी इसका सोल्यूशन दिखाऊंगी कि कितना आया है. चलिए देखते हैं. वी हैव मीडियन ऑल्सो हियर, देख सकते हैं. ये ही हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना आ जाता है मेरे पास. मल्टीप्लाई करने से, अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया. हाँ सच में बहुत आसान है. सो दिस गिव्स यू आंसर एज ए 10. सो इजी. काफ़ी इजी था. तो इस तरह से हम मीडियन निकाल लेंगे. अब चलते हैं मीन की तरफ.
मीन में लिए हमने ये थोड़ी सी खाली स्लाइड छोड़ रखी है, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू फाइंड आउट मीन ओवर हियर. एक्स आई 2 4 6, मैंने कुछ गलती की है, 4 नहीं आएगा, +4 करना था. ठीक है भाई. ओके, सो दिस विल बी, यहाँ तो 6 आएगा. ओके, 6 आएगा, 10 आएगा, 4 14 एंड देन वी हैव 18. तो ये आ गई एक्स आई. अब यार दो, मतलब मीन निकालने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट 2 थिंग्स दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड. देखो डायरेक्ट मेथड जो है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो बहुत ईजी लगता है. सो वट एवर यू थिंक इट्स एन ईजी, प्लीज ऑप्ट फॉर दैट. मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है मैडम एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है. एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते कि भैया ये मीन है हमारा 10, हमें नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया. इसके बाद हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए. ठीक है, मतलब कहने का है कि सब में से ए, और ए कैपिटल लिखना था, ए माइनस करते जाएंगे, कैपिटल स्मॉल दोनों से इसको डिनोट किया जाता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. 10 माइनस, दिस इज -8, दिस इज -4, दिस इज 0 4 8. ये हमेशा ऐसे ही आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सो इन द एंड यू हैव टू फाइंड आउट एक्स आई एफ आई. अब हम निकालेंगे एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई भी बोलते हैं, सो दिस इज एफ आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. लेकिन यहाँ पे एक्स आई नहीं है, मैंने निकाल लिया है डी आई. डी आई मीन्स डेविएशन, एक्स आई माइनस ए. तो यहाँ पे एक्स आई की जगह मैं लिखूंगी डी आई. डी आई इंटू एफ आई में मल्टीप्लाई करने वाली हूँ. सो दिस गिव्स यू -24 -20 0 20 24. ओके, काफी ज्यादा ये तो 0 ही आ गया, तो आंसर 10 है क्या? अरे ये तो सिंपल 0 आ गया. सुपर. तो इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एल प्लस सिग्मा, दिस इज डी आई एफ आई अपॉन कितना होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एच. अब एच ये हमारा 25 आया था, तो अगर मैं इसको देखूं, दिस इज 10 + 0, ये भैया डी है, डोंट गेट कंफ्यूज. 0 अपॉन 25 इंटू 4, क्या फर्क पड़ता है, क्या डिवाइड हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब जीरो उसमें है. तो आंसर कितना आया आपके पास, 10. देखो नाराज मत होना कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. सो आंसर इज 10. मीन चेक करते हैं, मीन कितना आ रहा है. ओ या मीन इज एब्सोल्युटली 10, मीन 10 आ रहा है. मीडियन आपके पास भी 10 आ रहा है. अच्छा, कभी भी आपको मीन मीडियन मॉड तीनों निकालने हो तो याद रखिएगा ये तीनों काफी आसपास होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो सकते, मतलब 10 12 ऐसे नहीं, काफी आसपास होंगे, डेसिमल्स में होंगे, बहुत करीब होंगे, क्योंकि मीन मीडियन मॉड एंड में तो एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा. चलो जी, अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बिलो या फिर लेस देन 40 लेस देन 42 चीज है, और ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक हाउ टू यूज इट, हाउ टू डील विद इट. चलिए, बिलो 40 का मतलब है दिस विल बी 38 to 40. व्हाई आई हैव टेकन 38, द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि इनमें दो दो का डिस्टेंस है, तो मैंने दो ही पीछे से सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 से 42, यहाँ पे कितना आएगा, 42 से 44, इधर 44 से 46, इधर 46 से 48, देन यू हैव अ 48 से 50, देन यू हैव अ 50 से 52. ऑलवेज किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले ये काम करना बहुत जरूरी है. उसके बाद आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है. ये एक्चुअल में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है. तरीका क्या है, ये बिलो है ना, क्योंकि मोर देन भी आता है तो भी बिलो है, पहले वाले को सेम रखो. मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, बिलो नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट, बिलो है ना तो नीचे, बिलो से अपर, बिलो से अपर वाले को सब्ट्रैक्ट करें. 5 - 3 that gives you 2, 9 - 5 that gives you 4, 14 - 9 that gives you 5, 28 - 14 that gives you 14, 31 - 28 3, and this also gives you 35 - 4. तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई. अब आप मीन निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो, जो आपको पूछा गया आप निकाल सकते हैं. दैट इज क्वाइट ईजी. आपको यही, अब इस में देखें तो आपको पूछा है कंप्यूट द मॉडल वेट, यानी कि आपको मॉड निकालना है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी, इसका मतलब भैया ये रही हमारे पास मॉडल क्लास. ये है हमारे पास F1. ओके, दिस वन इज F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2. जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, हम छोटे हो जाते हैं और ये भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं.
बेटा फॉर्मूलाज प्लीज 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 याद कर लो, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। रोज लिख के देखा करो, यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर दिस थिंग्स। एल कितना है हमारे पास, एल इज 46, काफी गंदी वैल्यूज है यार, चलिए देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 5 माइनस 3 इंटू एच। भैया एच कितना है हमारे पास 2, तो दैट इज इक्वल टू 46 प्लस 14 माइनस 5 9, 28 माइनस 8 दैट इज 20 इंटू 2। ओहो ये तो कट के 10 आ गया। सो दैट इज 46 प्लस 0.9, इट गिव्स यू 46.9। ये भी निकाल दिया मैंने। तो कैलकुलेशन इतनी भी मुश्किल नहीं होती दोस्तों, इसका मतलब ये है। सो हियर वी विल सी yippee 46.9 इज एन आंसर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साथ में लगाया है इन्होंने किलोग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको XF ना दे के कुछ ऐसे दिया वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको साथ में यूनिट्स लगाने जरूरी हैं। आपको बोला था मॉडल वेट निकालो, और यहाँ पे किलोग्राम में वेट है, तो किलो साथ में लिखने बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई हैव टेकन दिस अगेन, क्योंकि यार मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी बच्चों को तंग करती है। हमने मीन भी निकाल दिया, मीडियन भी निकाल दिया, मॉड भी निकाल लिया, अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में भी आती है, मीडियन में भी आती है, मॉड में भी आती है। ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज इन द मीन, डोंट वरी इट्स वेरी इजी। इन द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मीन, मीडियन या मॉड दिया होता है। इसमें आपको मीन दे रखा दैट इज 53। तो इससे तुमको क्या फायदा? फायदा ये होता है कि आपको मीडियन क्लास या मीन क्लास या मॉडल क्लास मिल जाती है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये हमारे पास मीन क्लास है, इसी को हमने पकड़ना है। इसका एडिशन आपको 100 करके दिया हुआ है। ग्रेट। सो व्हाट यू नीड टू डू, नथिंग, आपको XI निकालना है फटाफट से। XI कितना है यहाँ पे 10, 30, 50, 70, 90, मिड वैल्यू निकाली मैंने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। मतलब 20 से 40 के बीच में 30 आता है पता है, लेकिन 20 प्लस 40 60 होता है, 60 डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो 30। सो वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस ऑल्सो। XI निकला भैया, FI निकला है। अब क्या करना चाहिए हमको? करना चाहिए XI FI, क्योंकि ये मीन है। मीडियन और मॉड के क्वेश्चन लिटिल बिट ज़्यादा इजी होते हैं जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। मीडियन में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। 140 आई एम यूजिंग डायरेक्ट मेथड बेटा। ओके देयर इट इज 21 into 5 1 is 5 5 2 is 10 1050। this is 70 F2 and this is 90 into 17 बापरे। it is gives you 1230। तो ये आपके पास सिग्मा XI FI आ गया, ये XI आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले तो ये आपके पास कितना आ गया, सिग्मा XI FI। देखो मैं एडिशन नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। इट इज 2730 प्लस 30F, वो तो कर लूँगी। 2730 इसका आ रहा है। ओके दिस इज ओके, यहाँ पे शायद 5 आ रहा है। तो 2730 प्लस 30F1 प्लस 70F2, ये इसका एडिशन है। एडिशन भी हमको चाहिए क्योंकि हमको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूले का पर अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन को हमेशा x बार से डिनोट किया जाता है। दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। एंड हियर वी नो इट इज इक्वल्स टू 53। समेशन FI XI कितना, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। दैट इज 2730 प्लस 30F1 प्लस 70F2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी टोटल इज 100। तो अब आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अगर आप इसको उधर लेके जाए मल्टीप्लाई कर लें, 5300 इज इक्वल टू 2730 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपके पास एक मतलब एक प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ रहा है? 0 and 7 and here we have a 12 minus 7 and that gives you 5। ठीक है 5 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। so this is what I am getting over here, that is equal to 30F1 plus 70F2। ये भी अभी मुझे लगता बहुत इजी है, काफ़ी टफ है। मतलब टफ मतलब थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई दोस्तों। अनदर इक्वेशन इज व्हेन यू ऐड दीज ऑल।
जब तीनों को ऐड करोगे इसका एडिशन भी देख लेते हैं क्या है, वाई टू कैलकुलेट टू मच। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आता है f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 47। एक्चुअल में हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, यू आर गेटिंग 53 प्लस f1 प्लस f2 और इनका टोटल 100 आपको दिया हुआ है। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द इनको एडिशन करते हैं तो 53 को उधर लेके जाते हैं तो आपके पास आ जाता है f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 47। एंड नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही बचा है। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें इनका इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। या इनका इक्वेशन भी ये निकला है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन जो अभी हमने निकाला दैट इज f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 47। एक इक्वेशन तो है 3f1, ओके, 7f2 इज इक्वल टू 257। दूसरा इक्वेशन निकला है आपके पास f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू कितना निकला था, दैट इज इक्वल्स टू 47। तो आप या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर निकाल दो। मैं आपकी जगह होती फटाफट से एलिमिनेशन मेथड निकाल के f1 f2 निकाल देती, बट यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है और आंसर आ गया है आपके पास f1 एज एन 18 एंड f2 एज ए 29। गॉट इट? क्लियर? तो मतलब कैलकुलेशन यार खुद से कर लेना, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा कैलकुलेट करो। एग्जाम्स तुम्हारे आ रहे हैं ना कि मेरे आ रहे हैं, सो डू इट। Okay, let's have this question. इसमें क्या है, find the values in x and y if the median for the following data is 31. As I have already told you in these type of a question, mean, median और mod is already given to you. वो आपको पहले से दिया होता है। यहाँ पे 31 लिखा है, इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी हुई है, क्योंकि 30 और 31 के बीच में 40 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मीडियन जब आए तो CF निकालो आंखें बंद करके। Here it is 5 plus x, 11 plus x and 11 plus x plus y and that is equal to 17 plus x plus y. 17 plus 5 gives you 23. ठीक है, and it gives you 22 I think, not 23. 22 plus x plus y, एक चीज़ तो दिख रही है, इन सबको इक्वेट कर देंगे, यानी कि 40 is equal to 22 plus x plus y and that is equal to 40 minus 22 is equal to x plus y and this gives you 18 is equal to x plus y. तो एक इक्वेशन तो भैया हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा स्ट्रेट। चलिए, मीडियन कितना दिया हुआ 13 और फॉर्मूला क्या कहता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है, लोअर लिमिट कितनी होगी भैया 30 प्लस पूरा कितना है फ्रीक्वेंसी का जोड़ 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस CF कितना आ जाएगा, एक ऊपर वाला, ओहो CF होता है ये, एक ऊपर वाला कितना आएगा -11 माइनस एक्स, यानी कि 11 प्लस एक्स आया। फ्रीक्वेंसी आपके पास वही वाली होती है, यानी कि y इंटू एच। एच कितना आ गया हमारे पास, h इज 10 ओवर हियर। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं और एक और x और y में इक्वेशन निकालते हैं। इसको तो कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, ये 1 है तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 9 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 90 माइनस 10x, नॉट 90x, इट्स 10x। तो y किधर गया, y यार ये रहा, तो इट इज 10x प्लस y इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे कितना आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। भैया एलिमिनेशन लगाओ और आंसर निकालो, एक बार मैं देख लेती हूँ। ओके, आई थिंक यू कैन सी द ऑल द वीडियो। ओह चलो भैया, कैलकुलेट कर आके अपने पास हमारे पास आ रहा है x एज एन 8 एंड y एज ए 10। यू नीड टू कैलकुलेट। हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 तो निकाल लिया था, ये चीज़ अपन ने निकाल ली थी, रिमेंबर। देन वी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड वी फाइंड आउट दिस इक्वेशन एज अ ये भी हमने निकाल ली थी, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज और कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। हम एलिमिनेशन यूज करेंगे तब भी निकल जाएगा। तो मतलब इसको एलिमिनेट करते हैं, y कट गया, दिस इज 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 18, इट गिव्स यू कितना आ जाएगा 81, है ना। इट्स x इज इक्वल टू 9 9 से 81, तो x आ गया अपने पास और इसी तरह से y भी आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई 18 है तो y कितना आ जाएगा, आई थिंक यू आर गेटिंग, इट्स इक्वल्स टू 18 है ना, दैट एक मिनट रुक जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो एक मिनट x 9 आ रहा है क्या, नहीं x 8 आ रहा है, 9 नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, इधर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है। ये 1 आ गया, y चला गया, n/2 तो g 20 है, 20 माइनस 11 माइनस x इंटू 10, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जी बिल्कुल सही कैलकुलेशन है भैया हमारी, कोई चक्कर नहीं है, फिर हुआ गया
ओके वेट कहाँ थे हम? यहाँ इट्स yeah, 20 minus 11 is equal to 9. 9 minus x into 10. Y is equal to 90 minus 10x. Correct? तो 10x plus y is equal to 90. तो यार oh no, it's मैंने यहाँ भी गलती की है. ये 72 आएगा जो मैंने 81 लिखा हुआ है. ओके, गॉट योर मिस्टेक. ये दोनों ही 8 आ रहे हैं तो मेरे को वहाँ से शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दिया. So that gives you 72 when you subtract it. 72 तो ये हो जाएगा 8 डेफिनेटली. सॉरी फिर से मैंने हाँ ठीक है 8 हो जाएगा. अब आपको कितना आ रहा है? x plus y is equal to 18 तो y 10 हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन भी हमने निकाल लिया. काफ़ी निकाली हमने क्वेश्चन. देखो मीन मीडियन मॉड कर लिए, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज भी कर ले, और कुछ नहीं आता इसमें, कुछ खास नहीं आता. देखते हैं अगर कुछ आता है तो इसका फॉर्मल प्रूफ हमारे पास है, अपन देख सकते हैं. नाउ यू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो. अच्छा अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट नो आपके सिलेबस में कि नहीं, मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ. कुछ स्कूल्स तो बोलते हैं यार हैं बोर्ड्स में. ओके तो सिलेबस में ध्यान से देखना है क्या. मीडियन 20 है. वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्या कहते हैं इसको कंपटीशन में भी आ जाते हैं. NTSC कह लो, लॉट ऑफ कंपटीशंस आ दिया जो फ्यूचर में भी आएंगे तो आपको पता होना चाहिए. इसमें हम यूज़ करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला कहता है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मैं अक्सर बच्चों को याद दिलाती हूँ 2 मीन, जो मीन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसको अपने खत्म कर देना है. मॉड जो सबसे बड़ा है, सो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन. मीडियन हमेशा बीच में आएगा. 3 मीडियन माइनस 2 मीन. माइनस 2 मीन, जो 2 मीन है उसको माइनस कर देंगे. चलिए यहाँ से आपको निकालना था मॉड 3 इंटू 20 माइनस 22.5. इट गिव्स यू 60 minus 22 5. So mod is equal to, mod आपके पास कितना आ गया? That is equals to 15. अच्छा एक मिनट निकालना क्या है? Find the approximate value. Approx पूछी है. ओके मेरे को अभी भी लग रहा है कि कहीं पे अपन ने गलती तो नहीं की. मैंने कुछ गलती की. वो mod is equal to 3 मीडियन माइनस 2 mod. हाँ मैंने तो ठीक किया है. तो ये इनका या तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट निकालने के चक्कर में 15 लिखा है, क्योंकि आंसर तो आपका डेसिमल्स में आ रहा है. अगर आंसर निकालने की कोशिश करें तो 60 में से एक मिनट, अच्छा 22 इंटू 5 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया. आई एम सॉरी, हियर आई एम रॉन्ग. तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. इट गिव्स यू 45. ठीक है 45 आ गया. अब आंसर आ जाएगा 15. मॉड इज इक्वल टू 15. सो हियर वी गो. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखिए. मैं तो हमेशा याद रखती हूँ कि जो मॉड होता है सबसे बड़ा होता है. दैट इज इक्वल्स टू, एक ही फॉर्मूला याद रखने का. ये फॉर्मूले मत याद रखो, जो मैंने लिखवाया ना वो याद रखो. मॉड सबसे बड़ा, मीडियन सबसे छोटा आएगा. मॉड के साथ 1 आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ऐसे याद कर सकते हो आप. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, और क्या. चलिए दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. वैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था मैं होमवर्क नहीं देने वाली है आपको, क्योंकि आप आंसर ही नहीं देते हो. अरे इसका सोल्यूशन तो नहीं दिया हुआ, मैं पूरी आ जाती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको दिखाई ना दूँ. तो इसमें आपको ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है, इसलिए दिया है कि यार थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो, थोड़ा खुद से भी कर लो. हाँ मीन है इसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालना, ये सबसे ईजी चीज़ें हैं. फिर से मैं कहूँगी स्टैट्स इज नॉट दैट टफ. चलिए बच्चा पार्टी अब हम चलते हैं. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. विल ठीक है करेंगे और चैप्टर्स करेंगे. दीन मधु सर भी हैं, हम भी हैं, कर रहे हैं. एक बार मैं फिर से बता दूं कि वेदांतु का जो वेब प्लेटफॉर्म है वो सबसे बढ़िया है. सो प्लीज़ गो फॉर दैट, इट्स ग्रेट. ठीक है, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस.